Hello students, how are you? Myself Abhik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teachers. So today we are going to start a very new concept from indefinite integral for class 12. Okay, so in this lecture we will discuss about a particular structure, okay, which is very important for the board exam every year, and in the alternative year at least one question used to come from this structure. And this structure, actually, this very important structure for the class 12 board exam, whatever the board it is, CBSE, ICSE, and this state board, different state boards. So whatever the board it is, just no need to consider these boards here. For every boards, this type of questions is very important. The structure is actually just like that. स्ट्रक्चर कैसा होगा? इंटीग्रेशन रहेगा, e टू दी पावर x रहेगा, e टू दी पावर x के साथ ब्रैकेट में दो टर्म रहेगा, ठीक है, एक fx होगा, दूसरा f डैश x होगा. दैट मीन्स e टू दी पावर x तो रहेगा, e टू दी पावर x के साथ एक ब्रैकेट में एक टर्म रहेगा, दो टर्म रहेगा, ठीक है, उसमें से एक टर्म fx होगा, दूसरा टर्म f डैश x होगा. फॉर एग्जाम्पल, if you have sin x as your one term, then the another term will be cos x, because the sin x differentiation is cos x. So that means दो टर्म में एक टर्म तो fx होगा, दूसरा टर्म उसी fx का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है. अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, देन जो fx वाला पार्ट है, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने के बाद दो अलग अलग इंटीग्रेशन पार्ट मिलेगा. फर्स्ट इंटीग्रेशन है e टू दी पावर x fx एक पार्ट, सेकंड है e टू दी पावर x f डैश x दूसरा पार्ट. तो ये जो e टू दी पावर x fx वाला पार्ट है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट e टू दी पावर x f डैश x वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है. सो एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करने से ज़्यादा क्लियरिटी आ जाता है कि नहीं? ओके, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा तुम्हें. अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं. ये स्ट्रक्चर आप लोग लिख लिए, ठीक है. लिखो, सॉल्व इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 बाई x माइनस 1 बाई x स्क्वायर dx, ठीक है. तो यहां पर मुझे बोलो fx कौन सा है, f डैश x कौन सा है. e टू दी पावर x 1 बाई x प्लस माइनस 1 बाई x स्क्वायर. नाउ यू टेल मी which one is fx and which one is f dash x. Now you tell me ddx of 1 by x, what will be the answer of this 1 by x? ddx of 1 by x means minus 1 by x square. So that means this part is fx and this part is f dash x. As I told you, there will be two terms, and one of these two terms will be fx and the another term will be f dash x. Now you can see both the terms are there, fx and f dash x. Okay, तो ठीक है. तो हम लोग जो fx वाला पार्ट है पहले तो हम लोग पार्ट कर देंगे. e टू दी पावर x इंटू 1 बाई एक्स dx प्लस e टू दी पावर x इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx. सो जो fx वाला पार्ट है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो f डैश x वाला पार्ट है उसको हम लोग फिक्स्ड रखेंगे. ओके, सो Elite property. According to the Elite property, exponential is in the last position. So whatever the term is involved with this e to the power x term, that will be u. 1 by x u होगा, e to the power x all time it will be b. So if you use the formula UV formula, 1 by x b dx minus integration ddx of 1 by x integration e to the power x dx and then bahar dx. Now you can see
u integration b dx because it is u and it is your b. So now you can use the formula only. And this second part and plus minus minus this, ये जो माइनस है प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, e to the power x 1 by x square dx. 1 by x e to the power x minus इंटीग्रेशन ddx of 1 by x. आंसर निकाल के रखें हम लोग, देखो माइनस 1 by x square e to the power x dx and then minus e to the power x 1 by x square dx. तो 1 by x e to the power x minus minus plus 1 by x square e to the power x dx minus 1 by x square e to the power x dx. Now you can see both these terms are cancelled and plus c is also there. So that means the final answer is 1 by x e to the power x plus c. बस हो गया. तो हम लोगों ने ये सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग यहां पर सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोगों ने टच भी नहीं किया है. तो रिमेंबर दिस थिंग, whenever you are using this type of structures, then the first integration, the fx part should be integrated, but another part I think should remain same. Okay, now next question लिखो. Question number 2. Question number 2. Question number 2. Integration e to the power x 2 plus sine twice x. NCERT का क्वेश्चन है 1 plus cos twice x dx. ठीक है, यहां पर तो मुझे तो मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है. सो हाउ कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर e टू द पावर x बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहना पड़ेगा. सो दैट मीन्स वी हैव टू स्प्लिट दिस होल टर्म इनटू टू पार्ट्स. वी हैव टू स्प्लिट. So do you have any kind of link to split the whole term? Just I mean to say, if you have any kind of actually this any kind of option by which you can split the whole term, that should be used. Because if you want to use this particular structure, then in the bracket two different terms should be there, and one of this term will be fx and another term will be f dash x. So I think it should be actually rearranged, no? So e to the power x, so 2 plus, if you use sine twice x formula, 2 sin x cos x divided by 2 cos square x dx. E to the power x, now 2 by 2 cos square x plus 2 sin x cos x by 2 cos square x dx. Okay, 2 cancel, इधर cos x cancel. E to the power x sec square x plus sin x by cos x means 10x dx. Now you can see easily, you can I think you can figure out the fx and f dash x. Now you tell me which one is fx and which one is f dash x. Now everyone knows that TDX of 10x is sec square x. We know that, I think DDX of 10x is sec square x. So that means this 10x will be fx and the sec square x part will be f dash x. So as I told you,
this fx part should be solved, but f dash x part should remain fixed. So that means if you split the whole term into two different integrations, then this e to the power x 10x dx plus e to the power x sec square x dx, that should be fixed because it is the f dash x part, it is your fx part. Okay, so that should be continued. ये आपका कंटिन्यू होगा और ऑब्वियसली टू दी पावर x है, ये आपका भी ही होगा, 10x u होगा. नाउ यू शुड कंटिन्यू, यू भी प्रोसेस अप्लाई करिए आप और ये फिक्स्ड रहेगा, इसको आप टच भी नहीं करेंगे. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके, सो 10x e to the power x dx minus integration ddx of 10x integration e to the power x dx integration close either this dx and then plus e to the power x sec square x dx. So 10x integration e to the power x means e to the power x minus ddx of 10x means sec square x e to the power x dx plus e to the power x sec square x dx e to the power x 10x plus c. हो गया. एकदम सिंपल पैटर्न का क्वेश्चंस है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है. ठीक है, तो ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे. मैं क्वेश्चन दे देता हूं. लिखो e to the power x ब्रैकेट 1 minus sin x by 1 minus sin x by 1 minus cos x dx. ठीक है, ये आप होमवर्क करेंगे. ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो. एनसीईआरटी, ये सब एनसीईआरटी का ही है. लिखो इंटीग्रेशन e to the power x, इंटीग्रेशन e to the power x x by x plus 1 होल स्क्वायर. ठीक है, लिखो इंटीग्रेशन e to the power x x by x plus 1 होल स्क्वायर. दिस इज नॉट इन द फॉर्म. ये तो स्ट्रक्चर में तो नहीं है. इट इज नॉट इन द स्ट्रक्चर. देन हाउ कैन आई ब्रिंग इट इन द स्ट्रक्चर एज वेल? ओके, दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस. Okay, so if the actually the structures is not given directly, then how can I bring it in the form? Okay, so यहाँ पर एक ही टर्म दिखाई दे रहा है e to the power x के साथ, तो एक ही दिखाई दे रहा है. तो अगर मैं उसको सिंप्लीफाई, थोड़ा सिंपल करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं? अगर मैं चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू स्प्लिट द होल टर्म इनटू टू पार्ट्स, देन हाउ कैन यू स्प्लिट दिस पार्ट? दैट इज द क्वेश्चन. डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है कि नहीं? न्यूमरेटर में तो सिर्फ x है. अगर मैं यहां पर दो अलग अलग टर्म में स्प्लिट करना चाहूं तो देखो, तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx. सो e टू द पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx. सो e टू द पावर x, अगर मैं यहां पर थोड़ा बहुत कैंसिल करूं, ये मिल जाएगा आपको x प्लस 1 होल स्क्वायर. अब मुझे बोलो which one is fx and which one is f dash x, just like your फर्स्ट कैलकुलेशन. जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. यहां पर x के जगह क्या है? x प्लस 1 है. जस्ट यू कैन सी 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. फर्स्ट कैलकुलेशन की तरह ही होगा, है कि नहीं? तो दिस पार्ट इज fx and this part is f dash x. So that means surely we have to actually we have to use the integration part for the first integral, this part, and this integral will remain fixed.
So that means e to the power x 1 by x plus 1 dx minus e to the power x 1 by x plus 1 whole square dx. Now if you continue for this integral, so this part is b and this part is u. So 1 by x plus 1 integration e to the power x dx minus ddx of what? 1 by x plus 1 integration e to the power x dx and bahar dx minus e to the power x 1 by x plus 1 whole square dx. ओके ठीक है. तो अगर मैं यहां पर कंटिन्यू करूं 1 बाई एक्स प्लस 1 ए टू द पावर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, दैट मीन्स 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक माइनस रहेगा, e to the power x dx minus e to the power x 1 by x plus 1 whole square dx. 1 by x plus 1 e to the power x minus minus plus 1 by x plus 1 whole square e to the power x dx minus e to the power x x plus 1 whole square dx. 1 by x plus 1 e to the power x plus c. बस हो गए. हो गया, बस हो गया. ठीक है ना? ठीक है, वेरी सिंपल. जस्ट आपको थोड़ा वो स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है. e टू दी पावर x, एफ एक्स और एफ डैश एक्स कैसे स्प्लिट करें, और वो पार्ट डिनोमिनेटर के ऊपर ही डिपेंड करके आएगा. यहां पर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो मैंने सोचा अच्छा x को x प्लस 1 माइनस 1 ले लेते हैं. अगर डिनोमिनेटर में दूसरा कुछ रहे, दूसरा सोचेंगे और एक कर लेते हैं इस टाइप का. लिखो इंटीग्रेशन e टू द पावर x, लिखो इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस 3 बाई x माइनस 1 होल क्यूब. ठीक है, करो. इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस 3 बाई x माइनस 1 होल क्यूब. देख के तो लग रहा है कि ये इस स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है. ठीक है, अब बोलेगा सर इतना, मतलब यहाँ पर तो u भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. हाँ भाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. हाँ, तो u भी करने से इसका चेहरा देखो बहुत ही खराब है, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सिंपल बना के स्ट्रक्चर वाइज कर लें. ठीक है, नॉर्मल यू भी करोगे तब भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल यू भी करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा. ओके, सो बट आंसर एकदम बहुत लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा एकदम क्लमजीनेस आ जाएगा, ऐसा होगा. ठीक है, तो बोलो इसको अगर मैं, इफ यू वांट टू रीअरेंज दिस पार्ट, देन हाउ कैन आई रीअरेंज इट? दैट इज द मेन क्वेश्चन एक्चुअली. नो, दैट इज द मेन deal with this type of structure. So if you see that in the denominator part x minus 1 term is there, then I think x minus 1 minus 2, that should be splitted like that. Anyhow, this x minus 1 should be brought here. Okay, so e to the power x minus 1 by x minus 1 whole cube minus 2 by x minus 1 whole cube dx. Now if you cancel it, e to the power x 1 by x minus 1 whole square minus 2 by, अच्छा प्लस लेके ऐसे कर दें, माइनस x minus 1 whole cube dx. Now which one is fx and which one is f dash x?
नाउ यू कैन चेक इट डी डी एक्स ऑफ 1 by x minus 1 होल स्क्वायर. नाउ करो तो उसका x minus 1 होल टू द पावर -2 -2 x minus 1 -2 -1 -2 x minus 1 -3. Okay, so -2 by x minus 1 होल क्यूब. ठीक है, तो -2 by x minus 1 होल क्यूब आ गया क्या? सो दैट मीन्स ये वाला पार्ट f डैश x और ये वाला पार्ट यहां पर fx. सो fx वाला पार्ट ही तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और f डैश वाला पार्ट जो है वो फिक्स्ड रहेगा, उसको हम लोग टच भी नहीं करेंगे. e टू द पावर x -2 by x minus 1 होल क्यूब dx. सो कंटिन्यू करेंगे 1 by x minus 1 होल स्क्वायर e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ 1 by x minus 1 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx बाहर dx और इधर प्लस e टू द पावर x -2 by x minus 1 होल क्यूब dx. ठीक है, तो करो कंटिन्यू. क्या होगा? वन बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही होगा, माइनस इसका तो हम लोगों ने कुछ देर पहले निकाल के रखा था. देखो 2 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब ई टू दी पावर एक्स, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बाई एक्स माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स. ई टू दी पावर एक्स भी है, तो आई थिंक दिस विल बी कैंसल्ड. सिर्फ रहेगा ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी. है कि नहीं? ठीक है ना? फिर नेक्स्ट e to the power x log x plus 1 by x square dx. ठीक है, तो इसको देख के तो कौन सा एफ एक्स और कौन सा एफ डैश एक्स वो मतलब डिसाइड करना तो मुश्किल है. हाँ, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन ये तो नहीं होता है कि नहीं? तो इसमें एक काम करते हैं, देखो e टू दी पावर x log x dx प्लस e टू दी पावर x 1 बाई एक्स स्क्वायर dx. ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है नहीं. ठीक है, डायरेक्टली मतलब स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो एफ एक्स और एफ डैश एक्स तो दिखाई नहीं दे रहा, बट अलग अलग टर्म तो है, 2 डिफरेंट टर्म्स तो है. ठीक है, हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, टर्म में ला सकते हैं. देखो ये, हाँ देखो एक चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, अगर वो नहीं भी करे डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं इस पैटर्न का ही करेंगे तो देखो, हाँ इसको हम लोग ऐसे थोड़ा एक्सप्रेस कर सकते हैं. देखो log x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा अगर लाए, ठीक है, तो दो पार्ट यहां पर इंट्रोड्यूस होगा. कैसे? देखो हाँ, तो यहां पर देखो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स log x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस ई टू दी पावर x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स. देखो क्योंकि मैंने देखा log x और 1 बाई एक्स स्क्वायर दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है. यहां पर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स है, नॉट 1 बाई एक्स स्क्वायर.
तो यहां पर देख रहे हैं कि log x तो है बट उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं है, 1/x नहीं है। बीच में मैंने 1/x इंट्रोड्यूस कर दिया है, +1/x -1/x इंट्रोड्यूस करने के बाद दो अलग अलग टर्म निकलता है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। और यहां पर भी देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, ठीक है ना, एकदम सिंपल तरीके से निकल गया, ठीक है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो इसलिए 1/x तो रहना चाहिए, है कि नहीं, तभी तो ये स्ट्रक्चर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने 1/x खुद से इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे हम लोगों को स्ट्रक्चर मिल जाए एंड वी कैन प्रोसीड इजीली। ओके, तो यहां पर अब यहां पर बोलो, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। नाउ which one is fx and which one is f dash x? Obviously this part is fx और this part is f dash x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। So e to the power x log x dx plus e to the power x 1/x dx माइनस, यहां पर तो भाई वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा 1/x dx माइनस e to the power x 1/x square dx, वो तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं। बस तो e to the power अच्छा log x e to the power x dx माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ log x e to the power x dx बाहर dx प्लस e to the power x 1/x dx माइनस, यहां पर तो दूसरा केस बन जाएगा, यहां पर तो दूसरा है, इसका करेंगे, इसको फिक्स्ड रखेंगे, है कि नहीं। तो 1/x इंटीग्रेशन e to the power x dx माइनस दिस ddx ऑफ 1/x इंटीग्रेशन e to the power x dx बाहर dx, है कि नहीं, ठीक है। सो log x इंटू e to the power x माइनस ddx of log x means 1/x e to the power x प्लस e to the power x 1/x, है कि नहीं। फिर माइनस देके ब्रैकेट के अंदर 1/x e to the power x माइनस ddx of 1/x means माइनस 1/x स्क्वायर। ओ यहाँ पर तो और एक पार्ट तो छूट गया, माइनस ये वाला e to the power x 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 1/x स्क्वायर e to the power x dx एंड दिस पार्ट शुड बी रिटन दिस 1/x स्क्वायर dx, जो लास्ट पार्ट है कि नहीं। यहाँ पर ये कैंसिल। अच्छा यहाँ पर देखो, तो ये अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर दो यहाँ पर, तो आई थिंक दिस पार्ट विल बी कैंसिल्ड। ओके, सो द फाइनल आंसर इज व्हाट, फाइनल आंसर क्या होगा, हाँ फाइनल आंसर क्या होगा बोलो। हियर e to the power x log x, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बाकी रह गया माइनस 1/x e to the power x प्लस c। ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन तो यहां पर देखो बहुत है, क्वेश्चन तो यहां पर शॉर्ट नहीं है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस देख लेते हैं, एनसीईआरटी में कुछ बाकी है कि नहीं, एनसीईआरटी में कुछ है कि नहीं बाकी देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में तो नहीं, एनसीईआरटी में सब क्वेश्चंस हो गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में सब क्वेश्चंस हो गया है, मतलब एक्सरसाइज 7.6 का, ठीक है। और आरडी 19.26 बहुत सा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। क्या करें, देख के तो लग रहा है कि आप लोगों को आ जाएगा ये सब, ठीक है। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। देखो
इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में देखो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स, अगर पार्ट पार्ट तो आपको करना है, ठीक है। तो देखो तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल, तो ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब मुझे ये बोलो कौन सा यहां पर एफ एक्स है और कौन सा यहां पर एफ डैश एक्स है। साइन इनवर्स एक्स यहां पर एफ एक्स होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, सो दैट मीन्स ये कंटिन्यू होगा ई टू दी पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये कंटिन्यू होगा, तो कैसे होगा साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस, फॉर्मूला तो वही यहाँ पर ब्रैकेट देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, बाहर डी एक्स और इधर ई टू दी पावर एक्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये पूरा करेंगे तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स मीन्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये कैंसिल, ई टू दी पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके। तो 19.26 अगर आप करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हाँ 19.26 में क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर सकते हैं। जो हम लोग जब मतलब टफ लेवल का क्वेश्चंस है ये तो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो 19.26 से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर डी शर्मा का 19.26, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, भेज सकते हैं मुझे, ठीक है, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।